Okay, our Assalamu alaikum. Our today's topic is about climacteric and non-climacteric studies in horticulture. ठीक है? Horticulture क्या है? Study of vegetables and flowers. Okay, it means what are fruits, what are vegetables, and what are flowers? What are ornamental plants? Uh, how they behave, इसके बिहेवियर के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इसका हार्वेस्टिंग के बाद बिहेवियर कैसा होता है या हार्वेस्टिंग से पहले बिहेवियर कैसा होता है। इसको कहते हैं क्लाइमेक्टेरिक एंड नॉन क्लाइमेक्टेरिक जो कंडीशंस होती हैं। अच्छा, क्लाइमेक्टेरिक उन फ्रूट्स को कहते हैं, उन वेजिटेबल्स को कहते हैं जो कि हार्वेस्टिंग के बाद क्या करते हैं, राइप होते रहे। व्हाट डज इट मीन? उसमें थाइलीन प्रोडक्शन होती रहती है। अच्छा, उसमें क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट वो होते हैं जिनके अंदर हार्वेस्टिंग के बाद भी इथाइलीन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। पर या नॉर्मली अगर इथाइलीन जो है वो हमारे पास ये है कि एक फर्ज किया नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट होते हैं उनके अंदर इथाइलीन प्रोडक्ट फर्ज किया, यहाँ पर हमने हार्वेस्ट की है, ये वो पॉइंट है यहाँ पर हमने हार्वेस्ट की है, जहां पर इथाइलीन इसकी प्रोड्यूस हो रही है तो बाद में भी इतनी सी रहती है। ठीक है, लेकिन जो क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट होते हैं उनके अंदर बल्कि अगर यहाँ पर है तो इथाइलीन बढ़ती रहती है और उस बढ़ने की वजह से उसकी राइपनिंग इवन वी कैन भी ये हो सकती है आफ्टर हार्वेस्ट। ठीक है, इसे कहते हैं क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट, क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट। अच्छा इन Why there is a need to study climacteric and non-climacteric fruit. Studying climacteric and non-climacteric fruits is essential to understand their ripening processes, storage requirements, and post-harvest management. Climacteric fruits, like bananas and tomatoes, undergo a significant rise in respiration and ethylene production during ripening, making them more perishable and requiring careful storage to control these factors. Non-climacteric fruits, like strawberries and grapes, do not show this pattern, and their quality depends more on handling and immediate storage after harvest. This knowledge helps optimize harvesting, packaging, and supply chain strategies for different fruit types. No question rises that what is the comparison between climacteric and non-climacteric fruit based on their biochemical composition? Answer is climacteric and non-climacteric fruits differ in their biochemical properties. Climacteric fruits, like bananas and apples, show a sharp increase in respiration and ethylene production during ripening, which softens the fruit through enzymes breaking down cell walls and converts starches to sugars, making them sweeter. In contrast, non-climacteric fruits, such as strawberries and grapes, do not produce significant ethylene or experience major changes in respiration. Their sugar and acid levels remain stable, and they maintain a firmer texture. These differences influence how they are stored and managed post-harvest. टोमेटो, ठीक है, ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट हैं जो कि हार्वेस्टिंग के बाद भी इसके अंदर इथाइलिन प्रोड्यूस होती रहती है। नॉर्मली जितने भी क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट होते हैं उनके अंदर उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, बट दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर जिसकी वजह से शेल्फ लाइफ कम या ज्यादा होती है। ठीक है, फर्ज वाटर कंटेंट जिनके अंदर ज्यादा होता है उनकी भी शेल्फ लाइफ कम होती है। ठीक है, और लेकिन अब यहाँ पर जो नॉन क्लाइमेक्टाइड फ्रूट्स हैं उनकी एग्जांपल बताएं। एप्पल, सिट्रस, गावा इज नॉट अ, गावा इज अ क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट, गावा इज अ क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट। नॉन क्लाइमेक्टेरिक में ग्रेप्स आ जाते हैं, स्ट्रॉबेरीज आ जाती हैं और सिट्रस आ जाता है। ठीक है, ये दो तीनों क्या है, ये Non-climacteric fruits like strawberries need to be harvested at the right stage of ripeness, as they do not continue to ripen after being picked. Strawberries are best harvested when they are fully red, as this indicates peak flavor and sweetness. The exact timing depends on the variety, environmental conditions,
and intended use. For fresh consumption, fruit should be fully red and slightly firm, while for processing, they can be harvested when slightly overripe for maximum sweetness. Harvesting should be done in the early morning or late afternoon when temperatures are cooler to preserve freshness. Each berry is picked by hand to avoid bruising, with care taken to retain the green calyx attached. Using clean, sanitized containers helps prevent contamination. Regular harvesting every 2 to 3 days ensures the fruits are collected at the optimal stage and prevents overripe berries from spoiling the plant or nearby fruits. Proper handling post-harvest, including immediate cooling and gentle storage, maintains quality and extends shelf life. कितनी बार पढ़ाओगे, हर बार नहीं समझा जाएगा। ठीक है, हर बारी हमें यही बताना पड़ेगा कि ये होता क्या है। थाइलीन जो है ना, बायो सिंथेसिस पाथवे के बारे में डिटेल पढ़ाए। जी, अब एक वो मार्क वो नहीं है हमारे पास ज्यादा। ये एक यंग साइकिल है, क्या है? यंग साइकिल है। उसके मतलब क्या होता है कि जो सैम प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस होता है? जो मिथियोनीन है उससे सैम बनता है। क्या बनता है? सैम। और उस सैम, जो सैम है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है एसीसी के अंदर। किसके अंदर? सैम किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? एसीसी। अब सैम से जब एसीसी बनता है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे बनता है। सैम नॉर्मल कंडीशन में एथाइलिन क्यों नहीं बनाता? नॉर्मल कंडीशन में जो सैम है ना, ये एक सर्कल में रहता है। क्या रहता है? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मिथ्योनिन की? स्टार्च कोडान और दुनिया की तमाम प्रोटीन का जो पहला अमीनो एसिड होता है वो मिथियोनिन होता है। और अच्छा, और लेकिन जब भी पौधे को बस स्ट्रेस आती है तो क्या होता है कि सैम से क्या बनता है? एसीसी। सैम से क्या बनता है? एसीसी। अब ये कैसे बनता है? कौन है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द है एसीसी सिंथेस? एसीसी सिंथेस ये एक एंजाइम है जो कि सैम को एसीसी में कन्वर्ट कर देता है। फाइनली वी हैव अ तैयबा हु इज 95% of horticulture student, she knows that why। ठीक है, तो एसीसी सिंथेस, एसीसी सिंथेस क्या होता है? एंजाइम्स क्या होते हैं? ये कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस को। अच्छा, अब अमाइनो एसिड, ये जो मिथ्योनिन है ये अमाइनो एसिड है, अमाइनो डी कार्बोक्सिलेशन। अगर ये अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाए, डी अमाइनेशन, क्या कहेंगे इसको? डी अमाइनेशन। अच्छा, अगर ये जो अमाइनो ग्रुप है इससे रिमूव हो और एक और अदर ग्रुप के अंदर डी पेंसिलेशन। ठीक है, और ये पेंसिल मेरे पास आ गई, आप इसे कहेंगे पेंसिलेशन। उसे क्या कहेंगे? मेरे पास पेंसिलेशन। इसी तरह एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप जिसे हम CH3 कहते हैं, क्या कहते हैं? C2H5 एसिटाइल। मिथाइल, मिथाइल क्या होता है? CH3। अगर CH3 किसी प्रोटीन के साथ अटैच हो जाए उसे हम कहेंगे मिथाइलेशन। अगर वो रिमूव हो जाए, डीमिथाइलेशन। क्या कहेंगे? डीमिथाइलेशन। इसी तरह ही मैग्नीशियम या फास्फोरस की कंपाउंड के साथ अटैच हो जाए, फास्फोरिलेशन। लेकिन अगर वो रिमूव हो जाए, डीफास्फोरिलेशन। ये सिंपल कंसेप्ट है। अगर दो कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड बना ले उसे कहेंगे एडिशन। उसे क्या कहेंगे? दो कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन गैस है, इधर से हाइड्रोजन गैस है, दोनों आपस में मिलते हैं तो अमोनिया बन जाता है। इसे क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? अगर एक कंपाउंड दो चीजों में टुकड़े हो जाए उसे हम कहेंगे सब्सट्रैक्शन। या उसको दो तरह के रिएक्शन होते हैं बॉडी के अंदर, एक होते हैं कैटाबोलिज्म, एक होता है एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म क्या होता है? जिसमें तोड़ फोड़ होती है। एनाबोलिज्म जिसके अंदर कंपाउंड नए बनते हैं। ठीक है, अब यही सारा प्रोसेस है जो ड्यूरिंग पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ
हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? ये सारे वो प्रोसेस है जो राइपनिंग के दौरान हो रहे होते हैं, जो राइपनिंग के दौरान हो रहे होते हैं। समझ आ रही है? अब वो फ्रूट्स जिनके अंदर ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो रहे थे, वो उसे हम कहते हैं क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट। और वो फ्रूट जिसके अंदर ये प्रोसेस के अंदर बहुत ज्यादा चेंज ना आए, उसे हम कहते हैं नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट। ठीक है। अब ये जो है, स्टेम से जब एसीसी बनता है ना, तो अमाइनो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। क्या होती है? कि अमाइनो एक कंपाउंड से रिमूव होके दूसरे कंपाउंड में चला जाता है। इसीलिए इसलिए इसके अंदर एक डोमेन होती है, जिसे अमाइनो ट्रान क्या कहते हैं उसको। उस डोमेन का नाम इन्होंने क्या रख दिया? डोमेन क्या होती है? प्रोटीन का एक पार्ट होता है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन अदा करता है। समझ आ गई आपको? इस तरह जो जो एसीसी सिंथेज है ना, इससे एसीसी बन जाती है। क्या बन जाती है? एसीसी। अब एसीसी क्या है? व्हाट इज एसीसी, बैरुल्ला? अच्छा, अब है प्रोपेन। प्रोपेन किसे कहते हैं? थ्री कार्बन। और अगर साइक्लोप्रोपेन हो, तीन कार्बन लेकिन साइकिल की फॉर्म में हो। ठीक है। और अगर इसमें यहां पर कार्बोक्सिल ग्रुप भी हो और अमाइन ग्रुप भी हो, इसे कहते हैं वन अमाइनो वन कार्बोक्सिलिक साइक्लोप्रोपेन। ये एसीसी है। ये क्या है? एसीसी है। दिस इज एसीसी। ठीक है। अब इस एसीसी की फिर होती है ऑक्सीडेशन। क्या होती है? ऑक्सीडेशन कहते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर तो दो मॉलिक्यूल एटम, ऑक्सीजन के दो एटम किसी कंपाउंड के अंदर ऐड हो, उसे हम कहेंगे डाई ऑक्सीजनेशन। क्या कहेंगे? अगर O2 पूरे का पूरा मॉलिक्यूल ऐड हो जिसके अंदर दो ऑक्सीजन के एटम हो, उसे हम कहते हैं कि डाई ऑक्सीजनेशन। अगर एक एटम ऐड हो, उसे कहेंगे मोनो ऑक्सीजनेशन। उसे क्या कहते हैं? अच्छा, अब ये जो एसीसी है ना, एसीसी से जब इथाइलिन बनती है, एसीसी से क्या बनता है? इथाइलिन। जब ये इथाइलिन बनती है, तो उस दौरान जो एसीसी से जो इथाइलिन बनती है, उसे हम कहते हैं, जो एक एंजाइम यूज होता है, उसको हम कहते हैं एसीसी ऑक्सीडेज। क्या कहेंगे उसको? ऑक्सीडेज। ये क्या करता है कि इस एसीसी के मॉलिक्यूल के अंदर क्या ऐड कर देता है? ऑक्सीजन। इट मींस अगर ऑक्सीजन ना हो तो इथाइलिन नहीं बनेगी। अगर ऑक्सीजन ना हो, इट मींस अगर हमने पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ किसी भी फ्रूट की इनहांस करनी है, उसको एक ऐसे कमरे के अंदर, ऐसी पैकेजिंग के अंदर रखा जाए जहां पर ऑक्सीजन ना हो, तो उसकी इथाइलिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। व्हेन देयर इज अ लेस इथाइलिन, व्हाट विल हैपन? लेस राइपनिंग। ठीक है। अच्छा, इसलिए मैंने कहा था कि मॉडिफाइड टमास्फेरिक पैकेजिंग के अंदर हम क्या करते हैं? टेम्परेचर कम करते हैं और क्या करते हैं? गैसेस मॉडिफाइड कर देते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि इथाइलिन सच ऑक्सीजन को कम कर देते हैं, नाइट्रोजन का लेवल बढ़ा देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंटी बैक्टीरियल होता है, वो पैथोजेनिक का अटैक नहीं होने देता। और जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस जो है ना, ये बहुत अच्छी इनर्ट गैस है, और ये इसको हम एज ए फिलर के तौर पर भी यूज करते हैं। नेचर के अंदर 78% नाइट्रोजन होती है, लेकिन यहाँ पर हम 90% ऐड कर देते हैं इसके अंदर। क्या? नाइट्रोजन, ताकि जो नाइट्रोजन की मौजूदगी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो नहीं होते, तो इसलिए जो फ्रूट्स हैं उनकी जो शेल्फ लाइफ है। ओके उस्मान, what are the question come into your mind when you think about climacteric and non-climacteric word? मेरा यही पॉइंट है कि वो आई Exactly. आवाज करने की बहुत ही नई चीज होती है। क्या तरीके से क्या होता है कि
This is a very good question. What happened? Why is that happen? अब ये देखे ना, ग्रेप्स जो है, ग्रेप्स ग्रेप्स नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट है। ग्रेप्स के अंदर वाटर कंटेंट होता है, तो फिर वाटर कंटेंट इज नॉट इज नॉट दैट वी कैन दैट इफेक्ट थाइलिन प्रोडक्शन। आपको वाटर कंटेंट इज नॉट दैट फैक्टर दैट कंट्रोल द इथाइलिन प्रोडक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेक्टेरिक एंड नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स? उनके अंदर एक तो इथाइलिन का डिफरेंस है, अदर देन इथाइलिन क्या? ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर द अदर केमिकल्स, उसकी रेगुलेशन कैसे होती है? तय्यबा हो सकता है ना, है रीबा, है बच्चे? हो सकता है कि व्हाट आर द अदर केमिकल। अगर हाँ आपने इसके ऊपर एक रिसर्च आर्टिकल या डिफरेंट रिसर्च पेपर से हम डाटा लिए कि राइपनिंग वाले जो क्लाइमेटिक फ्रूट है उसकी पोस्ट हार्वेस्ट के दौरान कौन से केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, और नॉन क्लाइमेटिक वाले 10 केमिकल फ्रूट ले लें, 10 वो ले लें, फिर उसका कंपैरिजन करें, तो वी कैन कम, इसका आंसर कैसे हम ढूंढ सकते हैं? क्या फिर वी कैन कम टू सम सरप्राइजिंग कंक्लूजन व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट। टाइम हो गया, बस 2 मिनट, 2 मिनट दे दे। व्हाट हैपेंड टू द क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट एंड व्हाट हैपेंड टू द नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट? ठीक है, मैं आपको अभी आपको जस्ट आपने ना भी बताना नहीं है, आपको ये नॉलेज गेट कैसे करना है वो भी पता होना चाहिए। कि क्वेश्चन जब रेज करते हैं ना, ये अभी क्वेश्चन रेज किया है ना, उस क्वेश्चन से हमारा ये क्वेश्चन मिला कि हम इनको कैसे स्टडी कर सकते हैं, कि कैसे हमें पता चलेगा कि जो क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट क्या होते हैं, नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट क्या होते हैं, और उनके दरमियान में डिफरेंसेस क्या हैं, क्यों है एक फ्रूट क्लाइमेक्टेरिक है और कौन है एक फ्रूट नॉन क्लाइमेक्टेरिक है। इसके ऊपर मेरी एक स्टूडेंट है नौशीन, वो पीएचडी कर रही है, उसके ऊपर हमने कुछ पेपर्स भी पब्लिश किए हैं। तो उनका जो प्रेजेंटेशन होंगी वो अभी रिसेंटली हमने एक प्रेजेंटेशन देनी है, उसने आपका पीएचडी का इसका थीसिस का डिफेंस है। तो दैट कुड बी अ वेरी गुड ग्रेट आइडिया। वी कैन स्टडी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट एंड नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट, हाउ वी कैन स्टडी दैट। यही है कि इसके हम ना जेनेटिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, हमने जीन्स कंपैरेटिव एनालिसिस में आपको ना नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि इनके डिफरेंट जीन्स हैं, उनके अंदर कौन से ऐसे जीन्स हैं जो और उनके अंदर कौन कौन सी ऐसी म्यूटेशंस हैं, और उस म्यूटेशंस की वजह से क्या क्या ऐसा अफेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हम क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट को नॉन क्लाइमेक्टेरिक बना सकते हैं? आंसर इज यस। लोगों ने गावा एक ऐसा आइडेंटिफाई किया है जो नॉर्मली वो क्लाइमेक्टेरिक थे, लेकिन कुछ ऐसी गावा की वैरायटीज नेचुरल म्यूटेशन के थ्रू या आर्टिफिशियल म्यूटेशन के थ्रू इसराइल में डेवलप हुआ है, कि जिसके थ्रू उन्होंने ऐसा किया है कि ऐसा गावा प्रोड्यूस हुआ है जो कि नॉन क्लाइमेक्टेरिक है। इट मीन्स एवरीथिंग अबाउट दैट हु विल स्टडी दैट। समझ आ गई आप लोगों को? तो इस तरह ये सारी की सारी कहानी है। इसको इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में भी इसी को ऊपर हम करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपकी अटेंडेंस लगा देता हूँ।